उसको ओवरकम करने के लिए वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट इन स्ट्रिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के चक्कर में इतना टाइम तक जो आइडल मोड में रहेंगे रिसोर्सेज, एक ट्रांजेक्शन को फ्रेगमेंट ऑफ सेकंड के लिए रिक्वायरमेंट थी, बट फॉर 1 आवर ए ट्रांजेक्शन इज गोइंग ऑन और उसके बाद अनलॉक करें, दैट इज आल्सो डजंट फीजिबल सीम वेल। तो डेडलॉक हैंडलिंग, डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए प्रोटोकॉल इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर इनटू ए डेडलॉक स्टेट। सम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या है आपकी उसकी, that would be the required that each transaction logs all its data item before its begin execution, जो हमने कल भी किया था, that is गिरीश 9004। यस सर। इतना लेट कैसे ज्वाइन किया क्लास आपने? सर वो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी सर मॉडेम में। चलो एनी हाउ इट avoid that distraction during the ongoing class ना, वो एक्सेप्ट करने के लिए। एनी हाउ अटेंडेंस फॉर्म मैंने पोस्ट किया है, उसको फिल कर दो आप अभी। ओके सर। Then deadlock prevention requires each transaction log all data item before it begins execution। pre-declaration जो हमारा serializability था, growing and shrinking phase और two phase strict two phase logging protocol we discussed। second is impose partial ordering of all data item and required that a transaction can log data item only in the order specified by a partial order, graph based order, that will discuss in next slide। and third one is the deadlock prevention by ordering usually ensure by careful programming of the transaction, that is manually, that is very brainstorming, that is not feasible actually। जो सिस्टम है that should be make कि किस ट्रांजेक्शन को कितना ऑपरेशन पेंडिंग है, किसको प्रायोरिटी दिया जाए, किस ट्रांजेक्शन को रोल बैक किया जाए, ठीक है। that would be on the basis of various predefined criteria, इस ट्रांजेक्शन को रोल बैक किया जाए जब when there arise some conflict between two transactions। this is deadlock detection। how does I already show you the example, circular wait and wait for graph with a cycle। this is happening with the help of the edge vertices, we can detect the deadlock, we can detect deadlock among some transaction by detecting either the wait for graph without a cycle or wait for graph with a cycle, ठीक है। if this happen, wait for graph with a cycle, then there is certainly the deadlock। if there is without a cycle means once there would be only the delay of execution of the transaction, वो happen होगा, but that there will not exist any deadlock, ठीक है। look at that, there is 4 transaction T17, T18, T19 and T20, you can look at that, they doesn't make a draw a cycle। how T70 is requesting some data item that are held by the T18 and T19, ठीक है। तो उन डाटा आइटम्स के लिए they are requesting for 2 data items। तो T18 is requesting T20, but T20 क्या है, T20 has all the data items, it already holds all the data items what it required to complete its operation। so what would happen in that case, this T20 will, once the T20 will completed its operation, it will release the data item that is required by this T18। after that T18 T20 complete हो जाएगा, then T18 doesn't required क्योंकि इसने रिक्वेस्ट किया था only T20 के पास जो डाटा आइटम इसको रिक्वायरमेंट था to complete its operation। then T18 will once T18 will complete its operation, then it will release all the data item that are requested by T17 and T19। तो T17 को T19 का भी कंप्लीट का रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज T17 ट्रांजैक्शन यू कैन हैव ए लुक एट दैट, T17 इज डिपेंडेंट ऑन बोथ T18 एंड T19 जो ट्रांजैक्शन है हमारी उस पे रिक्वायरमेंट उन दोनों पे डिपेंडेंट है। तो व्हाट वुड हैपन इन दैट केस, जो T18 जैसे ही कंप्लीट होगा T19 विल कंप्लीट इस ट्रांजैक्शन, देन T19 का कंप्लीट होने के बाद T70 का हो जाएगा, मींस देयर डजंट एग्जिस्ट एनी डेडलॉक, यहाँ पे कोई डेडलॉक नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज T17, T18, T19। here in second diagram you can have a look that T20 is dependent on T19, here drawn a particular wait for graph with a cycle।
तो यहाँ पे क्या होगा, डेडलॉक अकर होगा, वहां पे वन पहले T20 का कंप्लीट होगा, इट विल रिलीज ऑल डाटा आइटम T18, T19 एंड T17. With the help of this, you have this particular diagram wait for graph, we can judge whether among a set of transaction there exists some deadlock or not. ठीक है, here this is the cycle wait for graph WFG that is reflecting that this is the deadlock exists in this second diagram. This is the deadlock detection. It can be detected on the basis of the nodes of a set of transaction, whether a wait for graph with a cycle exists or not. After that, if a deadlock has been detected, how we can revoke, or what are the remedies available with this, how we can resolve the issue. Some transactions will have to roll back definitely. इसमें क्या होगा, जैसे if I am talking about this T1 जिसका बात किया, अब ये डेडलॉक है, इसमें किसी एक ट्रांजैक्शन को हमने अबॉर्ट करना पड़ेगा, तभी ये जो साइकिल है, जो ग्राफ है, वेट फॉर ग्राफ विद ए साइकिल कैन बी ब्रेक. ठीक है, तभी हम उसको ब्रेक कर पाएंगे. किसी एक ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर देंगे तो दूसरी ट्रांजैक्शन, जैसे ही जो ट्रांजैक्शन, इफ आई एम आस्किंग कि अगर T20 को हमने विक्टिम बना दिया, मींस इस ट्रांजैक्शन को हमने अबॉर्ट कर दिया, तो व्हाट वुड हैपन, T18 को जो रिक्वायरमेंट था वो डाटा आइटम अवेलेबल हो जाएगा, देन T18 विल अकम्प्लिश, देन अगेन T19 एंड ऑन द बेसिस ऑफ T17, या T18 को या T19 किसी को भी विक्टिम बनाएंगे, ये मींस अबॉर्ट कर देंगे, रोल बैक कर देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक. तो रोल बैक जो है वो हाउ मच, टू मच व्हाट एक्सटेंड द रोल बैक शुड बी, आइदर द टोटल रोल बैक इज जो कंप्लीट ट्रांजैक्शन है हमारा, जो फॉर इंस्टेंस T20 है, उसको कंप्लीट रोल बैक कर दें. हो सकता है वो 1 आवर से स्टार्ट हो रखे, उसने बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे और एट द एंड ऑफ कंक्लूजन पे थे, उसका कंप्लीट हो जाता, कंप्लीट रोल बैक कर दिया, तो व्हाट वुड हैपन, जितना भी उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया है सारे के सारे, दैट वुड मेक अनडू हो जाएगा सारा का सारा. बट व्हाट वुड हैपन इन इफ, अगर मान लो जो T18 को रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ओनली दिस इज T18, व्हाट वुड हैपन इन दैट केस, अगर हम केवल इस T20 को वहां तक रोल बैक करें जहां पे इसने एक डाटा आइटम को लॉक किया है, किसी भी X डाटा आइटम था उसको राइट लॉक लगाया, रीड लॉक किया है, जो T18 को रिक्वायरमेंट था, जिसकी T18 इज वेटिंग फॉर ए पर्टिकुलर डाटा आइटम, तो उसको पार्शियल रोल बैक करें, मींस यू विल लुक एट दैट अबाउट द ट्रांजैक्शन, देन रीस्टार्ट इट, और more effective to roll back transaction only as far as necessary to break the deadlock. तो हम हो सकता है उसको थोड़ा सा रोल बैक, कुछ इंस्ट्रक्शन जो उसकी थी, एग्जीक्यूशन थी, स्टेटमेंट, उसको रोल बैक करें, तो वो पर्टिकुलर डाटा आइटम टू गेट फ्रीड दैट इज रिक्वायर्ड बाय अनदर ट्रांजैक्शन वेटिंग फॉर दैट डाटा आइटम. उससे क्या होगा, वो कंप्लीट रोल बैक और कंप्लीट ऑपरेशन उसके रिस्टोर हो जाएंगे लेटर ऑन. ठीक है, कंप्लीट अबॉर्ट नहीं करेंगे ट्रांजैक्शन को. Starvation one is very important in the deadlock, or you can say completely concurrency control technique. Starvation का क्या मतलब होता है, वो will let me know. Journal word है starvation. स्कैर्सिटी हो जाना, किसी चीज की कमी, स्कैर्सिटी, भूखमरी एक तरह से, ठीक है ना, वो सिंपली बोलते हैं स्टारवेशन. तो स्टारवेशन का मतलब है, कई बार जो हमने डिफरेंट मेथोडोलॉजी हम फॉलो करते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था जब 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल भी डिस्कस्ड यस्टरडे, तो उसके अंदर हमने व्हाट हैपेंड इन यस्टरडे, तो उसके अंदर भी वी डिस्कस्ड अबाउट कि जो यंगर ओल्डर ट्रांजैक्शन है दैट शुड बी गिवन प्रायोरिटी. ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ, अब अकेला ये नहीं होगा कि यंगर ट्रांजैक्शन को हर बार, यंगर एंड ओल्डर ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, व्हाट डज इट्स रिफ्लेक्टिंग, जिसका टाइम स्टैम्प जो है पहले है, जो पहले स्टार्ट हुई है, एंड यंगर ट्रांजैक्शन जो बाद में स्टार्ट हुई है ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो स्टारवेशन में ऐसा नहीं हो कि एक ही ट्रांजैक्शन को बार बार टारगेट किया जाए, एक ही ट्रांजैक्शन बार बार, जब भी डेडलॉक लग रहा है एक ट्रांजैक्शन उसको बार बार अबॉर्ट किया जा रहा है बिकॉज इट इज वेरी यंगर वन, तो उससे क्या हो जाएगा, वो ट्रांजैक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी. ठीक है, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा उसको, only one transaction suffer. So we should take care and create some criteria कि किस ट्रांजैक्शन को, डिफरेंट कंडीशंस की किस ट्रांजैक्शन को कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसको अकॉर्डिंगली ही हमने रोल बैक करना है.
अब ये ना हो एक ही ट्रांजेक्शन बार बार सफर करे तो उसका बहुत सारा ऑपरेशंस क्या है, दैट वुड बी डिलेड, प्रोलॉन्ग, काफी लंबे टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक। तो इंक्लूड द नंबर ऑफ रोल बैक इन द कॉस्ट फैक्टर टू अवॉइड स्टारवेशन, ठीक है। Another one is preemption. Preemption, who will let me know about the meaning of preemption? That is one of the important approach. Necessary condition for deadlock is preemption. So no preemption. There should not happen any preemption. Preemption का मतलब होता है किसी पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, पूरा एग्जीक्यूट करे, पूरा कंप्लीट तक एग्जीक्यूट करे, और उसके बाद जब कंप्लीट एग्जीक्यूट करे तो जो भी डाटा आइटम ट्रांजेक्शन ने होल्ड कर रखे हैं, होल्ड एंड वेट, तो वो सारे के सारे रिलीज कर दे। ऐसा ना हो नो प्रीएम्पशन, वंस दैट ट्रांजैक्शन हैव बीन गेट कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड एंड इट स्टिल कीप होल्ड ऑन द डाटा आइटम्स, ठीक है। तो नो प्रीएम्पशन, ऐसा ना हो, नो प्रीएम्पशन शुडंट बी हैपन। So the important approach for prevention of deadlock is preemption and transaction rollback. In preemption, when a transaction T2 requests a lock, that transaction T1 holds. When a transaction T2 requests a lock, that a transaction T1 holds, the lock granted to T1 may be preempted by rolling back of T1 and granting lock to T2. That automatically उसको forcefully अगर हमने एक्वायर कर लिया, उसके लिए टू कंडीशन है, टू डिफरेंट डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक यूजिंग टाइम स्टैम्प। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम वन में एनकाउंटर दो है डेडलॉक के अंदर। वन इज कंप्लीट डेडलॉक पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, अनदर वन इज अबाउट द डिफरेंट प्रिवेंशन टेक्निक फॉर टाइम यूजिंग टाइम स्टैम्प इन डेडलॉक, एंड वन इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। तो टू डिफरेंट डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक आपकी, वन इज weight die scheme, another one is bound weight scheme. So what is the difference between both of these? When a transaction TI request a data item currently held by TJ, एक ट्रांजेक्शन है TJ that उसने कोई डाटा आइटम होल्ड कर रखा है एंड दैट इज रिक्वेस्टेड बाय TI, तो वेट डाई स्कीम में TI is allowed to wait only if it has timestamp smaller than TJ. What does it mean? अगर TI will wait, TJ ने किसी डाटा आइटम को होल्ड कर रखा है फॉर एग्जीक्यूशन इट्स ऑपरेशन एंड TI इज रिक्वेस्टिंग फॉर दैट, तो TI अगर का टाइम स्टैम्प, TI इज अलाउड टू वेट ओनली इफ इट हैज अ टाइम स्टैम्प स्मॉलर देन TJ। मींस स्मॉलर देन का मतलब दैट इज ओल्डर देन TJ, TJ से ओल्डर है आपकी जो TI है, TI इज ओल्डर, जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है दैट विल केप्ट इन द क्यू फॉर द वेटिंग, जब तक टीजे अपना जो भी होल्ड कर रखा है डाटा आइटम उसका ऑपरेशन कंप्लीट करती है। वंस द टीजे रिलीजेस द डाटा आइटम देन इट विल हैंड ओवर टू द टीआई जो स्मॉलर या ओल्डर ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अदरवाइज टीआई इज रोल बैक, ये इस केस में है अगर टीआई जो जिसने रिक्वेस्ट किया डाटा आइटम के लिए दूसरी ट्रांजैक्शन को टीजे यंगर ट्रांजैक्शन ने होल्ड कर रखा है, टीजे इज यंगर ट्रांजैक्शन जो बाद में स्टार्ट हुई है एंड इट हैज ऑलरेडी हैव ए लॉक ऑन ए पर्टिकुलर डाटा आइटम, तो टीआई जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है वो वेट करेगी अनलेस अंटिल टीजे कंप्लीटेड इट्स वर्क। अगर जो रिक्वेस्ट करने वाली वेट टाइम में क्या होगा, अगर रिक्वेस्ट करने वाली टीआई स्मॉलर है मींस वो यंगर है, डाटा आइटम इज होल्ड बाय ए older transaction, otherwise जो this statement जो otherwise TI is rolled back, this represent अगर ये condition नहीं है TI is allowed only smaller than TJ, ये जो आपका है this particular if it has a time stamp smaller than TJ, only in that case वो hold करेंगी जब तक TJ complete ना करे। अगर उसका time stamp larger है, वेट करने वाले जो ट्रांजेक्शन वेट कर रही है और जो ओल्डर ट्रांजैक्शन ने किसी डाटा आइटम को होल्ड कर रखा है, देन व्हाट वुड हैपन इन दैट केस, दैट इज रोल्ड बैक, उसको अबॉर्ट कर देंगे। अगर यंगर ट्रांजैक्शन इज रिक्वेस्टिंग फॉर ए डाटा आइटम दैट इज होल्ड अप बाय ए ओल्डर ट्रांजैक्शन, तो वेट डाई स्कीम में क्या होगा, उसको रोल बैक कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्रायोरिटी किसको दी गई है, ओल्डर ट्रांजैक्शन को, क्योंकि ओल्डर ट्रांजैक्शन इज प्री अज्यूम्ड कि वो काफी टाइम काफी ऑपरेशंस कर रहे होंगे जो पहले से स्टार्ट हो रखी है। अगर उसको अबॉर्ट करेंगे तो बहुत सारा हमारा लॉस हो जाएगा, जो कॉस्ट काउंटिंग कॉस्ट फैक्टर है, मतलब उसने बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए होंगे, हो सकता है दिस इज द लास्ट और
ऑपरेशन दैट इट नीड्स टू एग्जीक्यूट टू कंप्लीट इट्स, जितने भी ऑपरेशन एक ट्रांजेक्शन के। तो अगर रिवाइज यंगर है इट इज रोल्ड बैक, ठीक है। दिस इज वेट डाई स्कीम। वाउंड वेट में क्या होता है, वाउंड वेट स्कीम में और जनरली कई बुक्स में यू विल फाइंड इट, अदरवाइज टीआई इज किल्ड, ठीक है। किल्ड मींस रोल्ड बैक, टीआई खत्म कर दिया ट्रांजेक्शन को, जो यंगर ट्रांजेक्शन है उसको खत्म कर दिया ऑटोमेटिकली। सेकेंड इज वाउंड वेट स्कीम। वाउंड वेट स्कीम में क्या होगा, व्हेन ए ट्रांजेक्शन टीआई रिक्वेस्ट ए डाटा आइटम टीजे, द सेम कंडीशन, टीआई ने रिक्वेस्ट किया टीजे, टीआई इज अलाउड टू वेट ओनली इफ इट हैज टाइम स्टैम्प लार्जर देन टीजे, अदरवाइज टीजे इज रोल्ड बैक। यहां पे क्या किया, टीआई इज अलाउड टू वेट, जो वाउंड वेट स्कीम है सेकंड टू स्कीम्स, उसके अंदर सेम टीआई ने रिक्वेस्ट किया टीजे को, टीजे ने कोई डाटा आइटम होल्ड कर रखा है, तो टीआई इज अलाउड टू वेट ओनली इफ इट हैज टाइम स्टैम्प लार्जर देन, मींस यंगर है तो अलाउ कर दिया उसको वेट करने के लिए टीजे को। टीजे का जो ओल्डर ट्रांजेक्शन है जो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, और जो यंगर ट्रांजेक्शन था वाउंड वेट स्कीम में उसको अलाउ कर दिया वेट के लिए, जब तक जो ओल्डर ट्रांजेक्शन टीजे है हैज कंप्लीटेड इट्स ऑपरेशन। अदरवाइज अगर मान लो यहाँ पे इफ इट हैज नॉट लार्जर, ठीक है, तो अदरवाइज टीजे इज रोल्ड बैक। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली रोल्ड बैक है। रोल्ड बैक मींस फोर्सफुली टीजे को खत्म कर दिया जाएगा। अगर टीजे कोई यंगर ओल्डर ट्रांजेक्शन ने वेट किया, ओल्डर ट्रांजेक्शन ने रिक्वेस्ट किया डाटा आइटम के लिए, जो यंगर ट्रांजेक्शन ने होल्ड कर रखा है, इट इज एग्जीक्यूटिंग इट्स ऑपरेशन, तो फोर्सफुली टीजे को रोल बैक कर दिया जाएगा। टीजे वुड गेट रोल बैक, जो यंगर ट्रांजेक्शन है उसको बीच में ही होल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। These are the two conditions for preemption preventing of deadlock using timestamp to overcome the deadlock. पूछना है किसी को कुछ? No, sir. No, sir. Why recovery is needed? Now the last topics of your unit, recovery and distributed database. Why recovery is needed? Recovery क्यों important है? There is a lot of difference. Database recovery, why DBMS recovery is needed, should be durable. Different types of failure, system crash हो जाए आपका, power failure हो जाए, disk crashes हो जाए, और कोई catastrophic condition है, fire है, flood है, whatsoever physical problem. These are the different reasons why we need the recovery of a particular database. These are general conditions that may arise the need of the recovery of database, ठीक है। तो database recovery technique का क्या है आपका, different types of database recovery techniques, that is undoing. One is undoing. Undoing का मतलब है आपका जो, जैसे सिंपली भी आप undoing करते हो, वर्ड की फाइल में कुछ टाइप करते हो, देन अगेन कुछ गलत टाइप कर देते हैं, तो देन यू नंबर ऑफ लाइंस है, कंट्रोल जेड करके अंडू कर देते हो। तो ऐसे ही इफ ए ट्रांजैक्शन क्रैशेस, जैसे ही आपका कोई पावर फेलियर है, सिस्टम क्रैश है, या कोई और कैटास्ट्रोफिक कंडीशन है, थेफ्ट है, व्हाटसोएवर अटैक है, किसी वजह से अगर आपका डाटाबेस पे जो आपने जो ट्रांजैक्शंस है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी, बट कुछ ट्रांजैक्शन कमिट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए, तो कमिट हो जाता तो डाटाबेस में जाके अपना परमानेंटली स्टोर हो जाते जो भी ऑपरेशन एग्जीक्यूशन किया है। बट वंस इन बिटवीन ट्रांजैक्शन क्रैशेस, then the recovery manager may undo transaction, means reverse the operation of a transactions. What would include? This involve examining the transaction for the long entry right item, जैसे tx old value have been provided here, जो old value होगी new value will get replaced from the old value, ठीक है। And this may be due to any of the non-catastrophic transaction failures. Further it is being categorized into two database recovery के लिए two part. One is called as the deferred update and another one is called as the immediate update, ठीक है। deferred update is no undo redo भी बोलते हैं इसको, कई जगह no undo redo भी मिल जाएगा आपको इसकी जगह, and immediate update को undo redo, ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा undo, this is no undo redo के नाम से भी आता है, deferred update of recovering of database, and this is undo redo, immediate update को undo redo. What is the difference between both of these, deferred update and immediate update?
this technique जो deferred update है, this is the part of undoing. This technique does not physically update the database on this until a transaction has reached its commit point. Before reaching commit point, all transaction updates are recorded in the local transaction workspace. If a transaction fails before reaching its commit point, it will not have changed the database in any way. So undo is needed. ठीक है, जैसे ही database अगर नहीं change किया था once, क्योंकि लोकल वर्क स्पेस ट्रांजेक्शन वर्क स्पेस में था, बट सिस्टम क्रैश हो गया आपका किसी वजह से, और वो सारा का सारा हमारा क्या है, आपने दीज वर इंपॉर्टेंट एज सक्सेसफुली करेक्ट था जितने भी आपने ट्रांजेक्शन के ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया था, देन व्हाट वुड हैपन, दोबारा से जब रिस्टार्ट होगा सिस्टम आपका, जो ट्रांजेक्शन जो हमारे लोकल ट्रांजेक्शन वर्क स्पेस में तो स्टोर हो गया बट कमिट पॉइंट तक रीच नहीं किया था, देन अगेन व्हेन द सिस्टम रिस्टार्ट, तो हम दोबारा से उस सभी ट्रांजेक्शन को अगेन एग्जीक्यूटिंग करने के बजाय व्हाट वुड हैपन, वी विल यूज मेक द यूज ऑफ रीडू. रीडू व्हाट वुड रीडू मेक, क्या करेगा, रीडू विल डू द व्हाट वुड हैपन, जितनी भी सारी की सारी जो रिकॉर्डेड है ट्रांजेक्शंस, जो एक ट्रांजेक्शन के ऑपरेशंस इन द लोकल ट्रांजेक्शन वर्कस्पेस, दैट वे अगेन रिटर्न डाउन इन द डाटाबेस. ठीक है, तो दिस इज बीइंग टर्म्ड एज द डिफर्ड अपडेट एंड दिस इज बीइंग कॉल्ड एज द नो अनडू और रीडू एल्गोरिथम. गेट इट, कुछ वर्क यू हैव परफॉर्म्ड that have not been finally stored in the database in between system crashes or whatsoever be the, किसी वजह से सिस्टम स्टॉप हो गया और ट्रांजैक्शन ने लोकल वर्कस्पेस ट्रांजैक्शन वर्कस्पेस पे तो राइट हो गया बट डाटाबेस पे नहीं किया बिकॉज़ वी didn't reach the commit point, then what would happen in that case, जो इतना भी था आपका दोबारा से स्टार्ट करके you can again redo all the transactions. ठीक है, उसके बाद you can execute the commit point. ठीक है, दिस इज रीडू एल्गोरिथम, नो अनडू रीडू एल्गोरिथम. इमीडिएट अपडेट इज रिवर्स ऑफ दैट. यहाँ पे क्या किया, वंस कुछ काफी सारी ट्रांजैक्शंस थी आपकी, ठीक है, अगेन एग्जीक्यूटेड बिफोर फाइनल रीचिंग द कमिटिंग पॉइंट ट्रांजैक्शन कमिट पॉइंट पे नहीं पहुंची, तो जितने भी सारे के सारे आपके लॉग के डिस्क के लॉग पे अवेलेबल है, जितने भी ऑपरेशन यू हैव बीन परफॉर्मिंग, तो उसके लिए रिकवरी कैसे करेंगे, इफ ए ट्रांजैक्शन फेल टू रीच इट्स कमिट पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन मस्ट बी अनडन, दैट इज ट्रांजैक्शन मस्ट बी रोल्ड बैक, hence we require both undo and redo. This technique is known as undo redo immediate. ठीक है, another recovery technique is, one of the important technique is shadow paging. ठीक है, this is you may find this also in the small answer type question. Shadow paging is also a recovery technique. Generally there happens a shadow page table in the system. जो मेन आपका है करंट पेज टेबल जो रिफ्लेक्ट कर रहा है रैम के अंदर है आपका, एक बैकग्राउंड में एक आपकी शैडो पेज टेबल आल्सो एग्जिस्ट. ठीक है, तो जो डाटा करंट जो आप यूज कर रहे हो एज रिफ्लेक्ट, किसी भी अगर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें हम डाटाबेस की, तो डाटाबेस जिस ब्लॉक में सपोज हर एक डाटा आइटम की वैल्यू अपडेट होती रहती है. ठीक है, फॉर इंस्टांस अभी आपका बैंक अकाउंट की बात करें, some amount have been happening, then उसका next transaction have been made, डेबिट क्रेडिट नई वैल्यू आ गई उस डाटा आइटम की, फिर नई वैल्यू आ गई उस डोमेन के अगेंस्ट, फिर नई वैल्यू आ गई, तो समटाइम्स वी रिक्वायर द ओल्ड वैल्यू. तो ओल्ड वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द शैडो पेज टेबल. ए शैडो पेज टेबल हैव बीन ऑलरेडी बीन happen in the background of the system. ठीक है, how does it is being reflected in this diagram, you can have a look. These are page 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 ब्लॉक से कोई 5 डाटा आइटम के correspondingly, then the value of the page 3 and page 5 have been updated later on. ठीक है, उनकी वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू अपडेटेड हो गई है. then करंट जो आपकी रिसेंट होगा जो रिफ्लेक्ट करेगा करंट पेज टेबल में, वो कौन सी वैल्यूज होल्ड करेगा, रिसेंटली अपडेटेड वैल्यू. ठीक है, तो जो ये आपका लेटेस्ट 3 का न्यू दैट इज ऑन द 3, 5 का न्यू दैट इज ऑन द 5. ठीक है, इट विल नॉट होल्ड द वैल्यू ऑफ
ओल्ड 5 और ओल्ड 3 की वैल्यू आपको रिक्वायरमेंट है, दैट इज बीइंग स्टोर्ड रिसेंटली ऑन द shadow page table. ठीक है, it provides atomicity and durability. When a transaction begin execution, the current directory is copied into a shadow directory. जो अपडेट से पहले की जो रिसेंटली लास्ट जो चेंजेस थे, लास्ट वैल्यूज थी डाटा आइटम की, that is being stored in a shadow directory. जब भी पेज मॉडिफाइड होगा, shadow page is allocated in which changes are made, and when it is ready to become durable, all pages that refer to original are updated to refer a new replacement page. ठीक है, another one is your distributed database management system techniques. We have already discussed this one. Replication, replica का क्या मतलब होता है? As it is copy of the previous ones. जो एग्जिस्टिंग डाटा है आपका, रेप्लिका का मीन सेम एज इट इज. तो एक पर्टिकुलर डाटाबेस मैनेजमेंट डाटाबेस है आपका. अगर अर्लियर कुछ डाटाबेस की रिक्वायरमेंट है आपके, कोरस्पोंडिंगली स्टूडेंट का डाटाबेस है, एडमिशन का, अगर डिपार्टमेंट के अंदर आपका एडमिशन चल रहा है, न्यू स्टूडेंट आर गेटिंग एनरोल्ड इन द डिपार्टमेंट इन ए पर्टिकुलर कोर्स, तो वो क्या है, सारा का सारा डाटा जब डिपार्टमेंट ने एंटर किया, एडमिशन किया, जो भी काउंसलिंग करके, जो भी काउंसलिंग कमेटी थी, उसके बाद सारा का सारा डाटा हैव बीन हैंडेड ओवर टू द जो भी हमारा एकेडमिक का ब्रांच है, एकेडमिक ब्लॉक में एडमिशन ब्रांच है, या उसको हमने एज इट इज सारा हैंड ओवर कर दिया. मींस डाटा के कंप्लीट कॉपी ऑफ द रेप्लिका ऑफ द डाटाबेस, उस डाटाबेस का सारा एज इट इज हैंड ओवर कर दिया, so that they can manage all the relevant detail or the eligibility or the whatsoever relevant credentials student की requirement है, they can manage and cross verify check it. ठीक है, that is replica. या अर्लियर लेवल पे इफ आई टॉक कुछ और डाटाबेस है, किसी एक पर्टिकुलर बैंकिंग ब्रांच का है, दैट इज आल्सो हैंडेड और कंप्लीटली, मान लो एक पीएनबी ब्रांच है हमारी जीजीयू के अंदर, उसने अपना सारा का सारा एज इट इज ईच एंड एवरी फील्ड वैल्यू, जितने भी फील्ड है, जितने भी टपल्स हैं, एज इट इज कंप्लीटली डाटाबेस हैव बीन हैंडेड ओवर, पूरा का पूरा डाटाबेस हैंड ओवर कर दिया दूसरी जगह एज ए बैकअप, ताकि अगर मान लो कल को एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर कोई भी कैटास्ट्रोफिक कंडीशन, फायर है, थेफ्ट है, या फ्लड है, व्हाटसोएवर बीइंग द कंडीशन, किसी वजह सिस्टम क्रैश है, तो वो उस वजह से बैकअप रहे सभी कस्टमर का, दैट इज वेरी प्रीशियस डाटाबेस. तो उसका एज इट इज कॉपी ऑन डेली बेसिस, ठीक है, डेली इवनिंग में या व्हाटसोएवर टाइम, जिस भी टाइम पे वो एक बैकअप रखते हैं कंप्लीट डेटाबेस का. ठीक है, ईच एंड एवरी डोमेन वैल्यू ऑफ द टेबल, जो हमारा कंसेप्चुअल स्कीम है, उसका सारा का सारा एज इट इज कॉपी करना, दैट इज रेप्लिका. बट यू डिडंट नो, जब हम एक्सेस करते हैं, गूगल पे आप एक्सेस करते हो किसी डेटाबेस को, यू डोंट नो फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग एक्सेसिंग इट. अगर आपने गूगल पे कीवर्ड किया, गूगल के अर्लियर कुछ अराउंड 20 इयर्स अगो, जो यहाँ पे सर्वर भी नहीं थे इंडिया के अंदर, लेटर ऑन जब इतना ज्यादा बैंडविड्थ, नेटवर्क फैसिलिटी, ठीक है, मोबाइल डाटा एंड अदर डाटा का फैसिलिटी इंक्रीज हुआ, देन दे इंस्टॉल देयर सर्वर यहाँ पे इंडिया के अंदर भी, बिकॉज बहुत ज्यादा, फिर अदरवाइज हर क्यूरी को, अगर यूएस में सर्वर है किसी पर्टिकुलर सर्च इंजन का, तो वहां पे क्यूरी जाना और वहीं से आना, तो नेटवर्क पे बहुत ज्यादा लोड इंक्रीज होगा. कोरस्पोंडिंगली उन्होंने यहाँ जो इंडिया से कंसर्न डाटाबेस था, दैट इज मोर फ्रीक्वेंटली इंक्वायर्ड और क्यूरीड बाय द कस्टमर्स और क्लाइंट इन द इंडिया. तो वो सारा डाटाबेस उन्होंने एज इट इज उसकी कॉपी उठा के सारा हमारे यहाँ सर्वर्स बेंगलोर में अर्लियर, देन लेटर ऑन आई थिंक ऑन मेनी मेजर सिटीज पे प्रोवाइड कर दिया, सो दैट नेटवर्क की जो लोड है दैट कुड बी रिड्यूस्ड. और इन बिटवीन कहीं पे अगर नेटवर्क में फॉल्ट भी आता है, तो स्टिल देयर सर्वर कैन, जो लोकल बोलते हैं, लोकली दे कैन रिस्पॉन्ड टू द क्यूरीज ऑफ द यूजर्स. तो दैट इज रेप्लिकेशन, as it is copy of the database. Second is the fragmentation, the distributed databases, and that is we have already discussed in the relational algebra. Fragmentation क्या होगा? जो complete database है, if I am talking about suppose this is a database, इसके अंदर बैंक का है या स्टूडेंट का कोई भी एग्जांपल, वन इज रोल नंबर,
और रिजल्ट के अंदर फर्दर देयर में भी कंपोनेंट, हंड्रेड्स ऑफ कॉलम, देयर में भी रिजल्ट, फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकंड सेमेस्टर का, व्हाटसोएवर. इफ आई फाउंड registration number, there is suppose 101, 102. There is 100,000 of student or hundreds of student in a particular class or 60 student in your class for BTech IT. There is these are the registration number, roll number, name, address, phone number and result. Suppose this is result for first semester, आगे second, third, you can add on the columns complete जो data होगा, base होगा आपका, that will help the complete result. Suppose I am talking about first semester result. Student 1 is pass, reappear, pass. For instance, I am just giving you an example of fragmentation of database. अगर हमें इस database में से एक small level पे example, small scale पे, अगर ये database है, इसमें ना hundreds of column है या hundreds of rows है, तो this particular data item, this is complete as it is copy करके अगर कहीं और पे transfer करते हैं, that is replica of the database. अब requirement के correspondingly हमें करना है, जैसे I just let you know, अगर गूगल के ऊपर, गूगल सर्वर के ऊपर डिफरेंट यूजर्स का क्यूरी आ रहा है और इंडिया का बहुत ज्यादा क्यूरी है, तो इंडिया का 99% क्या होगा, इफ यू आर सर्चिंग फॉर सम यूनिवर्सिटीज फ्रॉम इंडिया, अगर हम यहाँ से सर्च करेंगे 99% केसेस में हम इंडियन यूनिवर्सिटीज के बारे में ही सर्च करेंगे. इफ यू स्टूडेंट इज विलिंग टू टेक एडमिशन, देन लाइकवाइज, तो वो सारा का सारा जो डाटा है वो रेलिवेंट टू द इंडिया, ठीक है, किसी भी चीज में, यूनिवर्सिटीज में और कोई हिस्टोरिकल पैलेस है, टूरिस्ट पैलेस है, व्हाटसोएवर, वो सारा का सारा उस कंप्लीट सर्वर में से गूगल विल फ्रेगमेंट द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द यूजर्स ऑफ इंडिया. तो 99% क्या है, ऑल द यूजर्स इंक्वायर अबाउट द ए पर्टिकुलर विद इन कंडीशन. जैसे अगर हम हरियाणा में बात करेंगे तो यहाँ स्टैंड करेंगे मे बी प्रोबेबिलिटी की हम 50-60% जो भी हम क्यूरी करते हैं विद इन द स्टेट बात करें या नॉर्थ इंडिया की बात करें, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के पॉइंट, मतलब मेजोरिटी वुड बी क्यूरी विद इन द लोकल एरिया. तो ऐसे ही वो सारा का कंप्लीट सर्वर जो गूगल का है, कंप्लीट सर्वर पे जो कंप्लीट उनका जितना भी डेटाबेस उनके पास है सर्च इंजन के लिए, यूजर की क्यूरीज के लिए, रादर देन शिफ्टिंग द कंप्लीट उसका रेप्लिका बनाने के बजाय, व्हाट दे विल डू द जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली उस एरिया के यूजर्स हैं, ठीक है, तो वो डाटा को क्या करेंगे, फ्रेगमेंट कर देंगे कोरस्पोंडिंगली एंड दे विल हैंड ओवर दैट. तो ऐसे ही स्मॉल स्केल पे आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. दिस इज स्टूडेंट टेबल, आपकी क्लास का पूरा ये एक आईटी का, बीटेक आईटी का डिफरेंट डाटा है, इसमें बहुत सारे और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, फादर नेम, मदर नेम, एज एंड ऑल अदर थिंग्स, ठीक है. तो ये सारा का सारा डाटा आइटम एज इट इज अगर रिजल्ट ब्रांच को रिक्वायरमेंट है, व्हाट वुड हैपन इन दैट केस, इट विल नॉट, क्योंकि स्पेस भी ऑक्यूपाई होता है, मेमोरी ऑक्यूपाई होती है, ठीक है ना, सिस्टम की, उसको रिक्वायरमेंट है that a particular time only they need the registration number, roll number, name and result, ठीक है. एड्रेस एंड फोन नंबर they are not interested, ठीक है. तो irrelevant डाटा को एलिमिनेट करके जो हमने वर्टिकल पे किया, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, we have removed in this table for instance these two column, result and phone number. Result branch is not interested, तो हमने केवल relevant data have been handed over. तो ये क्या होगा, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन. रिलेशनल अलजेब्रा में इफ यू कैन रिकॉल दैट इज बीइंग डन विद ए ऑपरेशन कॉल्ड पाई, प्रोजेक्शन भी बोलते हैं जिसको रिलेशनल अलजेब्रा में. दैट इज वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डाटा, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन. इफ इन दैट केस डिपार्टमेंट को मान लो, सपोज डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है इस टेबल में से ऑल दो स्टूडेंट हु गोट द रीअपियर, उनका डिस्प्ले करना है उनको नोटिस बोर्ड के ऊपर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर एंड इवन दे आर नॉट इंटरेस्टेड विद द दिस नेम. तो व्हाट वुड हैपन, ऑल द रोज, जितनी भी रोज है विद द पी, ठीक है, जो पी के साथ है ऑलरेडी पास स्टूडेंट है, दे विल डिलीट ऑल दैट डाटा and these two tuples means with so
so much limited data. इसका requirement है so that they want to paste it on the notice board of the department so as to convey the last date of reappear or whatsoever being the result किसी भी concern में they just require roll number, even the registration number और roll number में से भी कोई एक particular column जो भी एक particular sufficient हो, they just require these to paste to inform to convey the student who got reappear about that to convey about the information of last date to fill the form for the reappear in a particular session. ठीक है, तो ये क्या होगा, जो complete database था एक small scale पे हमने इतने सारे column बनाए थे, उसको horizontal vertical we have made the different fragmentation as per the requirement. ठीक है, this is being termed as large scale पे I already let you know Google का server है search engine huge data है, पता नहीं कितने टेराबाइट में, और वो सारा का सारा ट्रांसफर करने की बजाय जो रेलिवेंट डाटा है, रेलिवेंट और यूजफुल, ओनली उसका फ्रेगमेंट करके डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट. ठीक है, जो रेलिवेंट है वही हम एक्सेस करें ताकि उस पे नेटवर्क पे भी मेमोरी भी, हमारी नेटवर्क पे बैंडविड्थ भी कम हो, हमारी जो सिस्टम के अंदर मेमोरी है दैट should also be optimized or using maximum utilized. ठीक है, this is being termed as the various types of distributed database techniques. ठीक है, this is all about unit 4. Almost I have given you an idea about the This is almost conclusion of our syllabus for the unit 3rd and 4th. आप लोगों को कुछ क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना है? नो सर. शेड्यूल कब है आपका? माइनर कब है इसका? इसका डीबीएमएस का माइनर का शेड्यूल कब है आपका? किस डेट को है? सर 22. 22 को. यस सर. ओके, और टाइमिंग क्या है? इवनिंग में ही है सर सारे. 3:30 4:30. Okay, 3:30 to 4:30. Dipti, you join the class late.